Good morning class. Class 12th. Now we have completed electric field, Coulomb's law and Gauss law. Now we are going to start the very interesting and the new topic, that is electrostatic potential energy. Today its first class is there, and I am going to explain you the concept of electrostatic potential energy, or you can say concept of potential energy itself, because if in case any student is having any type of confusion, so before we start the electrostatic potential energy, it's better to resolve those problems. So let me start with the concept of potential energy, and I hope that the notes are visible to you, beta. I'm giving you notes along with all my discussions, but all the notes you have to write in your handwriting, then only those notes will be fruitful to you. So let me start today's topic, beta. First thing, what is the requirement of potential energy, and for what type of forces we defined the concept of potential energy? Although we have discussed it in class 11th also, but I am just revising the topic in short discussion. You know that electrostatic force, spring force and gravitational force are called conservative forces. Why conservative forces? Because work done by these forces do not depend upon the path taken to displace an object or a charge or a spring from one position or one length to other position or other length. Are you getting this point? Work done by these forces do not depend upon the path taken. They just depend upon initial and final position of the journey. Such type of forces are called conservative forces, and for such type of forces we define a scalar quantity. Remember here, force is a vector quantity and electric field is a vector quantity. So whenever you have to solve a problem with concept of vector quantity, then you have to take care of magnitude as well as direction. Then you have to add them, subtract them, multiply them with the magnitude and direction, and you have to take care of the vector laws, which is a difficult way to solve a problem. So we defined a scalar quantity in which we don't have to consider the direction, but with help of that scalar quantity named potential energy, we can solve many of these problems with a simpler way of solution. So we defined a scalar quantity called potential energy to make the solutions of mechanical problems or electrostatic problem simple, right? Getting the point why we defined potential energy? Now, what is potential energy? How we defined potential energy? Let me find it. Potential energy is defined as, and focus here beta, focus here, this point is very interesting. Potential energy is defined as change in potential energy is equal to work done by the conservative force with a negative sign.
Listen to me again. Change in potential energy is defined as minus work done by conservative force, right? Now conservative force, work done, can be calculated using two formula. If the force is constant, then we directly use the dot product of the force and displacement vectors. But if the force is variable, as in the case of a spring force, as in the case of gravitational force, as in the case of electrostatic force, they depend upon the distance separation, then the formula to calculate work done is force into a very small displacement ds, during which this force can be taken as constant. Getting the point? And then we integrate this work done for small displacement, work done by this force F, for this small displacement we integrate it for the initial position and final position. So actually potential energy is defined as change in potential energy is equal to minus work done by conservative force. Is it clear? Now what is change in potential energy? Obviously change in potential energy is final potential energy minus initial potential energy. Now we can take this negative sign this side. So this expression will become initial potential energy minus final potential energy is work done. So this is work done by conservative force. I am repeating it again and again, beta, by conservative force, because you know, let me recall you, that if the force is done by the external force, then change in potential energy is equal to plus work done by external agent. I don't want to bring that concept here because I don't want my children to be confused during their calculations. So just focus on work done by conservative force or field. So is it clear that initial potential energy minus final potential energy is equal to integral f dot ds? And this formula comes when we take this minus this side. Is it clear? अच्छा, अब देखो, to apply this formula, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए अभी बात नहीं कर रहे हैं बेटा, जनरल बात कर रहे हैं. स्प्रिंग फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, और हमको क्या पता करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और यहाँ क्या मिल रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके चेंज निकालते हैं. पहले चेंज निकालते हैं. और चेंज कैसे निकलेगा, पहले वर्क डन निकालेंगे, उसकी हेल्प से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा तो हम इन दोनों में से किसी एक पोजीशन को रेफरेंस पोजीशन मान लेंगे और उस रेफरेंस पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की फिक्स वैल्यू असाइन कर देंगे. तब हमको रेफरेंस वैल्यू के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी एक फाइनल पोजीशन की मिलेगी. अगर हमने इनिशियल पोजीशन को रेफरेंस लेवल मान लिया, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की एक वैल्यू फिक्स कर दी अपने मन से, तो हमें डिफरेंस में इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी. ये रास्ता है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का. अब जो मैंने बोला, अगर आप उससे कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल चिंता मत करो, हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं.
ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है बेटा। ध्यान से सुनो। 11th में मैं ये बच्चों को बता चुकी हूँ कि अर्थ पर, क्लास 7th का याद करो बेटा, हम लोग अर्थ पर किसी मास को अगर रखते थे तो हम क्या मानते थे कि पोटेंशियल एनर्जी उस मास की कितनी है, 0। याद है आपको? तो वो ही एग्जाम्पल उठाते हैं क्लास 7 से। अर्थ पर कोई मास रखा हुआ था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0। उसको उठाकर हम h हाइट ऊपर ले गए, ठीक। मास कितना है, m। तो इनिशियल पोजीशन क्या है कि वो अर्थ सरफेस पर है, फाइनल पोजीशन क्या है कि वो h हाइट ऊपर रखा हुआ है। अब हमने जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला, इन दोनों में से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगभग 10 किलोमीटर्स तक हम कांस्टेंट मानते हैं, उसका जो वेरिएशन है वो नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये हम h हाइट तक जो ले गए हैं वो h हाइट इस 10 किलोमीटर के अंदर की हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। तो हम ग्रेविटी को कितना मानते हैं, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। कहाँ तक, 10 किलोमीटर तक। अब अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर तक अगर हम जाते हैं तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को लगभग कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो हमने कहा कि फिर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा, वो यूज़ करेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली F.S। अब देखो, जो ऑब्जेक्ट हम ऊपर ले जा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर mg, और उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की ओर। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 180। तो अगर 180 है तो जब आप यहाँ पर वर्क डन लिखेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड mg, डिस्प्लेसमेंट कितना h हाइट का, तो h लिखा, और दोनों के बीच का कोसाइन 180। तो mgh विद अ माइनस साइन हो जाएगा डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमने क्या कहा, हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमने क्या माना, देखो हमने कहा कि इनमें से किसी एक पोजीशन पर हम पोटेंशियल एनर्जी को वैल्यू असाइन कर दें और उस पोजीशन को हम मान लें या कहें रेफरेंस पॉइंट। तो चलो देखते हैं बेटा, हमने इनिशियल पोजीशन को, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जब ऑब्जेक्ट है तो उस पोजीशन को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब उस पोजीशन पर हमने कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, लेट दैट पोटेंशियल एनर्जी बी 0। ध्यान से सुनना इस बात को। हमने कहा कि रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को हम मान लें 0। ये है रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को मान लें 0। ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी on the earth's surface is taken to be 0। यानी अर्थ की सरफेस को हमने क्या माना, रेफरेंस लेवल, और उसे कौन सी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की असाइन की, 0। तो अब अपने इस फॉर्मूले पर आ जाओ, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू माइनस mgh। लेकिन u इनिशियल हमने क्या लिया बेटा, अर्थ की सरफेस पर, और उसकी वैल्यू 0। तो u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू माइनस mgh। तो u फाइनल क्या हो गया, mgh।
एच, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, क्लास 7th में हम यही तो पढ़ते थे कि एच हाइट तक अगर मास m को ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी उस मास की mgh होगी। लेकिन बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे एक फैक्ट क्या चल रहा था कि इस पोजीशन पर मास की पोटेंशियल एनर्जी mgh तब होगी जब अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर तुमको अभी भी लगा कि इस बात का क्या मतलब है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो, मैंने पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या माना, बताओ? 0 माना था ना। अब अगर मैं कहूँ कि मेरा मन नहीं है कि मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानूं, मैं कहती हूँ कि अर्थ की सरफेस पर जब मास रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। कोई चिंता की बात नहीं है, बस ध्यान से समझो कि क्या कह रही हूँ। इनिशियल रेफरेंस लेवल जो है अर्थ की सरफेस, उस पे मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, mgh है। तो फिर से हम अपने फॉर्मूले पे लौटे। U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट h। वर्क डन तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही, तो वो तो बदला नहीं। हमने ये क्या चेंज किया, हमने इनिशियल लेवल अर्थ की सरफेस जो था उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जो वैल्यू असाइन की थी 0 की जगह, हमने कहा अगर मैं कुछ और वैल्यू असाइन कर दूं जैसे mgh तो क्या होगा। तो मैंने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पे रख दी mgh। ठीक, तो इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू माइनस mgh। तो फाइनल एनर्जी अब आ गई, ध्यान से देखना, 2 mgh। दोनों डिस्कशंस आपने देखे बेटा, दो बातें सीखी, ध्यान से समझना, दो बातें सीखी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, बड़ी खूबसूरत सी। क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट एंड इट्स रेफरेंस वैल्यू। जो रेफरेंस लेवल हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ है और उस रेफरेंस लेवल की क्या पोटेंशियल वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये बात समझ आ रही है? लेकिन चाहे ये केस हो और चाहे पिछला केस हो, चाहे ये वाला केस हो जिसमें कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 2 mgh आई, क्योंकि अर्थ की सरफेस पर रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ना होकर mgh थी। लेकिन अगर आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करें, अगर आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करें, फाइनल कितनी आई है देखो 2 mgh, इनिशियल कितनी है mgh, तो दोनों का डिफरेंस कितना है mgh। तो जब हमने रेफरेंस लेवल बदल दिया, रेफरेंस लेवल की वैल्यू बदल दी पोटेंशियल एनर्जी की, तब भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो बदली। किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल और उसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है, लेकिन दोनों पॉइंट्स अगर सेम है, इनिशियल और फाइनल, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने इसे रेफरेंस लेवल माना या इसे माना, और इस पर भी डिपेंड नहीं करता है कि जिसे भी रेफरेंस लेवल माना उसको क्या वैल्यू दी। यहाँ मैंने दोनों एग्जाम्पल्स तुमको देखो दिखाए कि जब मैंने रेफरेंस लेवल अर्थ की सरफेस ली और उसे असाइन की वैल्यू 0, तो फाइनल यानी कि h हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh थी।
जब मैंने रेफरेंस लेवल का जो पोटेंशियल एनर्जी था वो 0 ना लेकर mgh लिया तो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी बदलकर 2 mgh हो गई, लेकिन यहाँ पर भी फाइनल माइनस इनिशियल mgh ही है, mgh माइनस 0, और यहाँ पर भी फाइनल माइनस इनिशियल 2 mgh माइनस mgh वो mgh ही है। तो 2 पॉइंट हमने खूबसूरत से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखे। क्या है वो 2 पॉइंट्स? कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट एंड इट्स रेफरेंस वैल्यू, बट potential energies difference between these 2 points does not depend upon the reference value. Change in potential energy remains same. कब? अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जिनके बीच डिस्प्लेसमेंट हुआ वो सेम रहें तो क्या ये हम लोगों को बात क्लियर हुई बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की एक खास बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के अगले कॉन्सेप्ट पर।